और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग, वजीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर यह मीटिंग होनी है। 3 बजे यह मीटिंग होगी। आज जम्मू कश्मीर बीजेपी के जो कोर ग्रुप के लीडर्स हैं वो आज दिल्ली में हाजिर रहेंगे। दिल्ली में आज अमित शाह की रिहाइशगाह पर मीटिंग होगी और ये मीटिंग चूंकि बीजेपी के कोर ग्रुप की मीटिंग है इसलिए ऐसा समझा जा रहा है कि इसमें बहुत ही कुछ खास जो मौजू है इस पर चर्चा होगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि शायद इस मीटिंग का जो हदफ है वो है या जो एजेंडा है वो है लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर किस तरह की तैयारी है या क्या तैयारी की जाए। कुल मिलाकर ये लोकसभा चुनाव से पहले उसकी तैयारी को लेकर एक मीटिंग हो सकती है, जैसा कि हमारे नुमाइंदे ने जराए के हवाले से बात कही है। उनका कहना है कि ये जो मीटिंग है जिसमें बीजेपी कोर ग्रुप यानी जम्मू कश्मीर बीजेपी के कोर ग्रुप के लोगों के साथ अमित शाह बैठेंगे, तो इस मीटिंग का एजेंडा कुछ इस तरह का ही होगा। और अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान पाकिस्तान का कबीह चेहरा बेनकाब कर चुका है। एक बार फिर कश्मीर का राग अलापने पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। हिंदुस्तान की फर्स्ट सेक्रेटरी पटेल गहलोत ने राइट ऑफ रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा उसके सामने रखा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आदी मुजरिम बन चुका है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा करने के लिए आलमी फोरम का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान की हरकतों को बैन अक़वामी सतह पर बेनकाब कर दिया। Pakistan has become a habitual offender when it comes to misusing this august forum to peddle baseless and malicious propaganda against India. Member states of the United Nations and other multilateral organizations are well aware that Pakistan does so to deflect the international community's attention away from its own abysmal record on human rights. We reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Matters pertaining to the UTs of J&K and Ladakh are purely internal to India. Pakistan has no locus standi to comment on our domestic matters. As a country with one of the world's worst human rights records, particularly when it comes to minority and women's rights, Pakistan would do well to put its own house in order before venturing to point a finger at the world's largest democracy. A glaring example of the systemic violence against minorities in Pakistan was the large-scale brutality perpetrated against the minority Christian community in Jaranwala in Pakistan's Faisalabad district in August 2023, where a total of 19 churches were gutted and 89 Christian houses were burnt down. Similar treatment has been meted out to the Ahmadiyyas, whose places of worship have been demolished. The condition of women belonging to minority communities in Pakistan, notably Hindus, Sikhs and Christians, remains deplorable. According to a recent report published by Pakistan's own Human Rights Commission, an estimated 1,000 women from minority communities are subjected to abduction and forced conversion and marriage in Pakistan every year. Pakistan has been the home and patron to the largest number of internationally proscribed terrorist entities and individuals in the world. Instead of engaging in technical sophistry, we call upon Pakistan to take credible and verifiable action against the perpetrators of the Mumbai terror attacks, whose victims await justice even after 15 years. In order for there to be peace in South Asia, the actions that Pakistan needs to take are threefold. First, stop cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. And third, stop the grave and persistent human rights violations against the minorities in Pakistan. I thank you, Mr. President. आगे बढ़ते कश्मीर में मौसम बदल रहा है। पुंछ और राजौरी अजला को कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड पर वाक़ा इलाका पीर की गली में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। सुबह सवेरे 2 से 2.5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। तो ये आप तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह से कश्मीर में बदले मौसम की शुरुआत या आगाज जो है वो दिखाई साफ दे रहा है। कश्मीर में मौसम बदल रहा है। पुंछ और राजौरी अजला को कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड पर वाक़ा इलाके पीर की गली में मौसम की पहली बर्फबारी का यह नजारा है। सुबह सवेरे 2 से 2.5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है।
और दुनिया भर में मशहूर शुर आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग के अफरवट की चोटी पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई। अगरचे हल्की बर्फबारी हुई, ताहम ये पहली बर्फ शोबे सियाहत से वाबस्ता लोगों और सयाहों के लिए मजीद खुशियां लाएगी। गुलमर्ग में मौजूद सयाहों ने बर्फ देखकर इंतहाई खुशी का इजहार किया। इधर गुलमर्ग में सियाहत से जुड़े लोगों ने इस पहली बर्फबारी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि गुलमर्ग में ज्यादातर सयाह बर्फबारी देखने आते हैं। आज उन्हें यकीन है कि अब ज्यादा से ज्यादा सयाह गुलमर्ग आएंगे। पहली स्नोफॉल हुई है गुलमर्ग माउंटेन के ऊपर, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे हमारा टूरिज्म, विंटर टूरिज्म जो हमारा है, इससे बहुत ज़्यादा विंटर टूरिज्म हमारा बढ़ता है। नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं स्कीइंग के लिए। आपको पता है पहली बर्फ़ देख के यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट थे बहुत खुश हुए। सेकंड, हमारे जो लोकल लोग थे, काम करने वाले, जो स्कीइंग वाले हैं, स्लेज वाले हैं, उनमें एक खुशी की लहर है कि स्नो बाइक वाले हैं, उनमें एक खुशी की लहर है बर्फ़ पड़ने से, क्योंकि बर्फ़ पड़ने से यहाँ पे तकरीबन 30,000 लोगों की कमाई जो है वो सिर्फ बर्फ़ से होती है। आपको पता है यहाँ पे इंटरनेशनल स्कीइंग भी होती है हमारी। और गुज़िश्ता साल हुकूमत ने सियाहत को फरोग देने के लिए जिला राजौरी के इलाके बथुनी में एक पार्क तैयार किया था, जिस पर महकमा जंगलात ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। लेकिन इस पार्क के इफ्तिताह से कबल ही इसकी हालत अबतर हो गई है। यहां पानी की सप्लाई तक नहीं है। यहाँ पार्क की अनदेखी की गई है। कहा सामने सुना था कि दरोड़ा के अंदर एक अच्छा पार्क बना है, लेकिन यहाँ 4-6 बेंच लगे हुए हैं और 1-2 लकड़ी के ब्रिज बने हैं। उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। गेट को ताला लगा हुआ है और एक तरफ से जाला तोड़ के लोगों ने अंदर आने का रास्ता बनाया हुआ है, वहां पर आ जा रहे हैं। लेकिन जितना कहा गया था कि इसके लिए पैसे को खर्च किया है, कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग किया गया है। इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये मेन हाईवे के ऊपर है। आज हमारे लिए राजौरी के अंदर इतना बड़े जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं टूरिस्ट के लिए, कल जब वो टूरिस्ट यहाँ आना शुरू होगा उसके लिए तो रास्ते में वो क्या देखेंगे। मेरी सरकार से अनुरोध है, खास करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, कि आप इस पार्क को इतना अनदेखा ना करें। यहाँ आए, कम से कम जो पैसा मंजूर हुआ है उसका देखिए सही उपयोग हुआ है या नहीं। यहाँ पर टूरिस्ट आए, घूमें, एंजॉय करें, मगर किसी भी तरह की फैसिलिटीज पार्क में नहीं दी गई है, जिससे यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति निराश है। सरकार के लाखों रुपए लगे हैं मगर जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लोगों की एक बार फिर सरकार से अपील है कि इस पार्क को डेवलप किया जाए। जो फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं है उन फैसिलिटीज को दिया जाए, ताकि लोग यहाँ पर आए, उन्हें तमाम तरह की फैसिलिटी मिले और किसी भी तरह की परेशानी का सामना उन्हें ना करना पड़े। राजौरी से न्यूज़ 18 के लिए मैं शक्ति शर्मा। और वारवान किश्तवाड़ में शानदार फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस दौरान सेक्रेटरी सियाहत ने सियाहत के शोबे में वारवान के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए कई ऐलानात किए। इस अजीम शान फेस्टिवल को डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू ने जिले इंतजामिया किश्तवाड़ और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के इश्तराक से इनेकाद किया। मेले का इफ्तिताह हुकूमत के सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह ने किया। वारवान फेस्टिवल 2 दिन तक मुनक्किद किया गया, जिसमें न सिर्फ किश्तवाड़ बल्कि दीगर इलाकों से भी लोगों ने शिरकत की। सही मानों में बहुत ज्यादा चीजें आपके लिए हैं, क्योंकि हम सब इसीलिए आए हैं। बरवन का वादिया और ये मड़वा लाजवाब है। सब तो घूमते हैं बाहर शहर में घूमते हैं, श्रीनगर, गुलमार्ग, सोनमार्ग, लेकिन जम्मू कश्मीर में गांव तरफ इतना अच्छा बढ़िया जगह है, ये तो कोई सोचा भी नहीं था। मैं उसी जगह ढूंढ के आ रहा हूँ। अगर यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट अगर आगे बढ़ जाए तो यहाँ पर डेवलप्ड होगा गांव और डेवलप्ड होगा यहाँ पर बिजली, पानी, ये सब जरूरी है। यहाँ पर ये फेस कर रहा हूँ। किश्तवाड़, रामबन, डोडा, उधमपुर, इस तरह के ब्यूटीफुल ट्रैक्स हैं और ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। और ये आप देखिए, ये वादी अपने आप में इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पे अगले कुछ सालों में मुझे लगता है कि हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे। लेकिन इस जगह का बहुत स्ट्रॉन्ग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इट्स ए हिमालयन इकोलॉजी। हमें इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ लोकल इकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इको टूरिज़्म का बहुत इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। लोगों का हमें इसमें साथ चाहिए और मैं गुजारिश करूँगा किश्तवाड़ ज़िले के और रामबन ज़िले और डोडा ज़िले और तमाम
जो इस एरिया में अजला हैं, उन सब के लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि टूरिज़्म ज़िले से अपने अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि टूरिज़्म का पोटेंशियल यहाँ बहुत ज़्यादा है और ये लाइवलीहुड जनरेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इस जगह की, इन ज़िलों की, इन जगहों की इकॉनमी को टर्न अराउंड करने में मेजर रोल प्ले कर सकता है। सेक्रेटरी टूरिज्म खुद यहाँ पे आज चीफ गेस्ट बन के, मेहमान खसूसी बन के आए हैं और उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ के यूथ के लिए करे हैं, चाहे वो यूथ क्लब्स हो और जो होम स्टेज हो और ट्रेनिंग के और ट्रैकिंग गाइड्स के अलग अलग प्रोग्राम। तो यही हमको चीज चाहिए कि टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे और किसी ना किसी तरह, मुझे लगता है वार्ड 1 फेस्टिवल करा के वो हमने अचीव किया है। अब टूरिज्म डिपार्टमेंट का क्योंकि ध्यान हमारी तरफ है, हम लोग चाहेंगे कि इसको ज्यादा से ज्यादा कैश इन करें और अपने यूथ को नए नए मौके दें। कुछ लोगों ने बोला इसको पहले कराना चाहिए, डेफिनेटली हम लोग का अगस्त में प्लान था, किसी कारण से नहीं हो पाया, अगले साल इसको जुलाई के महीने में कराएंगे और एक कैलेंडर इवेंट बनाएंगे। कैलेंडर इवेंट का मतलब है हर साल एक बार जरूर होगा, तो वो हमारी कोशिश है कि एक बार एक कैलेंडर इवेंट बन जाएगा तो बड़े बड़े देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आके इसमें जुड़ेंगे और हर साल ये इसका साइज बढ़ता जाएगा। फॉरेन टूरिस्ट भी आए हुए, आपने देखे होंगे यहाँ कैंपिंग कर रहे हैं, तो कैंपिंग साइट्स बहुत अच्छी है, हाइकिंग, ट्रैकिंग और साथ में यहाँ बच्चों के लिए अच्छे अच्छे ट्रैक बन सकते हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट की पहल बहुत अच्छी है और इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करने से इसको एक टूरिज्म मैप पे भी लाया गया है, आई गॉट टू नो। और मुझे लगता है कि ये जो एरिया है इसका एक ही सोल्यूशन है, दैट इज टूरिज्म। अदरवाइज यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं है और बाकी स्कोप भी नहीं है। इवन मनरेगा का भी स्कोप कम है क्योंकि पॉपुलेशन एक जगह कंसंट्रेटेड है, पेरिफेरल एरियाज अनइनहेबिटेड है, तो वहाँ तो कोई स्ट्रक्चर बनाने का फायदा नहीं है। सो टूरिज्म इज गोइंग टू बूम देयर लाइफ और होम स्टे का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। उसके लिए इनको हर घर से अगर 2-2, 3-3 कमरे अलॉन्ग विद अटैच्ड बाथरूम ये डेवलप करेंगे और इनको गाइड किया जाए, उससे मुझे पूरा यकीन है कि इनको बेनिफिट होगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज चौथा दिन सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था। एक दिन कबल ही डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रस्तुत किया था श्वेत पत्र, दूसरी बार विपक्ष ने किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की मानसून सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने दूसरी बार किया वॉकआउट। यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रदेश सरकार कर रही है खत्म। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा नेता प्रतिपक्ष समेत विपक्षी सदस्य अपनी बात से पलटे, सबसे बड़े पलटू राम जयराम ठाकुर हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सुक्खू सरकार पर लगाया आरोप, कहा विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, बार बार वॉकआउट करने पर मजबूर किया जा रहा है। लोकसभा में पास हुआ नारी वंदन अधिनियम, हिमाचल में महिलाओं ने जताई खुशी, पीएम मोदी का जताया आभार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिल को बताया ऐतिहासिक। शिमला में प्रदेश भाजपा 25 सितंबर को धरना प्रदर्शन करेगी। धरना प्रदर्शन करने के बाद विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने पत्रकार वार्ता में कही है ये बात। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी आई है, बरसात से भारी नुकसान हुआ है और इन सब को लेकर के बीजेपी अपना आंदोलन करेगी। हमीरपुर में जिला कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट रोहित शर्मा ने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से 51 लाख रुपए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दान देने के लिए आभार व्यक्त किया। मंडी से बड़ी खबर, 6 बेल ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। जाफरान की फसल अगरचे पापोर और कुछ इलाकों में ही काश्त की जाती थी, ताहम अब साइंस के नई टेक्नोलॉजी की वजह से कश्मीर के हर इलाके में इंडोर जाफरान उगाया जा सकता है। वहीं बांडीपोरा जिले से ताल्लुक रखने वाले एक प्रोग्रेसिव किसान पीरजादा शमसुद्दीन बांडीपोरा जिले में भी जाफरान उगाना चाहते हैं। अगरचे जाफरान रिसर्च सेंटर पापोर ने इंडोर जाफरान के लिए इन किसान को बीज फराहम किए हैं, लेकिन ये किसान जो हैं ये उम्मीद है इन्हें कि वो बांडीपोरा के खेतों से भी जाफरान की काश्त कर सकते हैं, जिसके लिए इन्होंने ज़राई यूनिवर्सिटी से ताउन फराहम करने की अपील की है। जाफरान है, क्या ये पापोर इलाका के बगैर भी किसी इलाके में उग सकती है? आज वीसी साहब ने हमें
यहाँ पे इंडोर के लिए बीज तकसीम किया, जिसके लिए अलहदा ट्राई और रेक्स इशू किए हैं ताकि हम इस सीड को कल्टीवेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसी हिसाब से बोल के हम इसको ज़मीन में भी उगाने का शौक़ है, क्योंकि ये कमरों में करना है जो ट्राई पर है, हम ज़मीन में भी करेंगे, ट्राई करेंगे कि हमारी मिट्टी में भी इंशाल्लाह होगा। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन हाई हमा कुपवाड़ा में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। सजाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर की मौजूदगी और साथ साथ जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए बराह रास्त जिम्मेदार करार देते हुए कहा है कि अगर ये लोग इंतखाबी धांधली नहीं करते तो यहाँ 1 लाख लोग कब्रों में नहीं होते। उनका कहना था कि ये सैलानी है और इनके हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हुए, और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इनका हिसाब भी हो जाएगा। तस्दील होगी उन लोगों की जो इस वक्त कब्र में है, उनको किसने मारा है, ये क्या बोलते हैं। जो 87 के चोर हैं जिन्होंने गन ठोसा इस कौम पर, और उसके बाद 1 लाख लोग जो हैं वो कब्रों में हैं इस वक्त वायलेंस की वजह से, ये बता रहे हैं सैक्रिफाइस। इनका लाल झंडा खून का झंडा है, जो खून ने बहाया है, और अल्लाह ताला इनसे हिसाब लेगा, ये याद रखना। देखिए एलजी साहब को पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन से ही पता चलता है कि सच क्या, ओपिनियन पोल से नहीं। मुझे लगता है जो उन्होंने बात कही है शायद उनको सोचना चाहिए इस पर, और मैं अगर उनकी जगह होता तो ये बयान वापस ले लेता, क्योंकि इट्स अगेंस्ट द बेसिक एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। इवन जब मोदी जी हैं वो भी इलेक्शन से ही आए हैं ना, ओपिनियन पोल से नहीं आए हैं, और हमने तो वेलकम किया है, बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ जो बाकी भी बंद हैं, जो बेचारे बाहर के जेलों में बिलखुसूस बंद हैं, अल्लाह करे, और हमारी ये अपील है सरकार से कि वो उनको भी नहीं। ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी, बिकॉज अगर वो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में आए थे टूरिस्ट साहब, तो यहां तो उन्होंने कोई सीट 14 में भी नहीं जीती है, 80% पोलिंग स्टेशनों में वो ट्रेल कर रहे थे, तो उनकी प्रॉब्लम कुछ और है, शायद डिलिमिटेशन नहीं है। और अगर उनका जो अलग हुआ है, फॉर एग्जांपल हंदवाड़ा की बात मैंने सुना हो रही थी, वहां जो इलाका अलग हुआ है उसमें तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की लीड थी, होना तो हमें चाहिए, मगर चूंकि हमने 6 की 6 जीती है, हमारे लिए एक ही बात है, इधर जाए उधर जाए, हमने तो लीड लेनी है। वादी कश्मीर में खुश्क साली की वजह से किसान और फ्रूट ग्रोवर्स परेशान होकर बारिश का इंतजार कर रहे हैं। पहाड़ी जिले शोपियां में भी ऐसी ही सूरत हाल है, इसलिए यहां के लोग अपने माल मवेशी को पालने के लिए जंगल का रुख करते हैं, लेकिन खुश्क साली की वजह से यहां पर भी घास सूख चुकी है और इसके साथ साथ नदी नालों में पानी की सतह भी कम हो चुकी है। ऐसे में हुकूमत ने एक खुशआइंद कदम उठाया था और कई इलाकों में वाटर पॉइंट्स बनाए गए, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं और कई पॉइंट्स में तो पानी मयसर ही नहीं है, जिसकी वजह से पानी के कहर के चलते अब चौपाए भी मुतासिर हो रहे हैं। जनाब ये गई जनाब मुश्किलात वारिया जंगलन मज आब वाब सह गो खुशक, चारवाइन त्रश कुन वन बनाया डैम वेम योर, मगर यम पूर खुशक, इन आब तहन, मौसम तमे आई, वुबर वुबर खसान मगर रूदा पेवान कहें, घास वास सह दोद तमाम वो तुम पन्ने वो वारिया मुश्किलात अम वन योर वन अनान, मतलब अमे मूजूब अनान मतलब वन गरे रटन योर दोस बिल्कुल फाके वसान, शामन पेवान त्रश गर दिन, यपर दरियाब अत आब कम, यह खुशक गुमुत पूरा खुशक गुमुत, वन ओकुन जंगलस कुन और चलित त्रश मूजूब, हरदस गई चारवाइस त्रश जरूरी आसन। जहां एक तरफ फ्रूट ग्रोवर्स और किसान खुशक साली से परेशान है, वहीं चारपा भी इस कहत साली से गुजर रहे हैं। अगरचे यहाँ के लोग या मकामी लोग जंगलात की तरफ गर्मियों में रुख करते हैं ताकि जानवर यहाँ पे नीला घास खा पाते और यहाँ पे पानी पीने को भी मयसर रहता था, लेकिन खुशक साली के बाद अब जंगलों में भी पानी की कहत शुरू हो चुकी है और यहाँ पे जो घास है वो सूख चुका है। ऐसे में लोग कई तरह के परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अगरचे गवर्नमेंट ने यहाँ पे कई जगहों पे वाटर पॉन्ड बनाए ताकि जो चारपा है जहाँ पे पानी मयसर ना हो वहाँ पे वो पानी पी सकते थे, लेकिन वो भी खाली नजर आ रहे हैं। शाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान।
और वादी में पिछले 2 महीनों से चल रही खुश्क साली की वजह से जाफरान की पैदावार पर असर पड़ा है। ज़राई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नजीर अहमद गनाई ने बताया कि इस सीजन में जाफरान की खेती के लिए आबपाशी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पहले जाफरान के खेतों में कसीर तादाद में बादाम के भी दरख्त होते थे, जिसकी वजह से जमीन में नमी रहती थी। वाइस चांसलर डॉक्टर नजीर अहमद ने बादाम की काश्त करने का किसानों को मशवरा दिया है। काफ़ी सालों पहले यहाँ पे इस सैफरान के फील्ड में बादाम के भी पेड़ होते थे और सैफरान भी होता था, लेकिन बदकिस्मती से वो बादाम के पेड़ काटे और आज हम इसको सिमुलेट कर रहे हैं कि अगर हमने इसको बादाम के पेड़ों के साथ जो है ना इंटीग्रेट किया, कल्टीवेट किया, तो सैफरान की काश्त बढ़ सकती है क्योंकि एक शेड बनेगा और मॉइस्चर रहेगा। और उसके अलावा हमने यहाँ पे इस फील्ड में इसको काला जीरे के साथ भी कल्टीवेट किया और इसी फील्ड में जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसमें सैफरान भी है और काला जीरा भी है। और काला जीरा हमने जून जुलाई के महीने में हमने हार्वेस्ट किया और आज काला जीरा आपको दिखेगा नहीं, आज सिर्फ सैफरान कुछ दिनों बाद आपको दिखेगा। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करी है कि सैफरान को नई टेक्निक से इसकी पैदावार को बढ़ाने का, और साथ में जम्मू कश्मीर को एक GI टैग भी हासिल हुआ है और जिसकी वजह से हमारी मार्केटिंग में इसे रवां साल मुसलसल बारिश की वजह से राजौरी में फसलें बर्बाद हो गई हैं। खासतौर से तरकारी की फसल मुतासर हुई है। फसलें मुतासर होने से सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। मुतासर किसानों ने फसल के नुकसान का मुआवजा देने का इंतजामिया से मुतालबा किया है। पूरा नुकसान हो गया, 4-5 बार जो आए या ओले पड़े इसकी वजह से पूरा नुकसान हो चुका है। आज तक किसी ने नहीं पूछा, कोई दवाई या कोई खाद कोई चीज़ नहीं देते हैं। जब एग्रीकल्चर का दफ्तर में जाते हैं ना तो दुगना रेट बताते हैं। अभी बीज के लिए बोलेंगे, हम तो बोलते हैं हमारे पास आया ही कुछ नहीं, हमारे पास है ही कुछ नहीं, आया ही कुछ नहीं है, कुछ नहीं देते, कोई सुनवाई के लिए आता नहीं हमारे पास। ये पत्ते पूरे खराब हो चुके हैं, पूरे खराब हो चुके हैं ना। ये बाहर से जाकर दवाइयाँ ला के मैंने मार के फिर दोबारा तैयार किया है, प्राइवेट दवाई लिया पूरा, लेकिन इन लोग कोई दवाई नहीं दी आज तक, ना कोई इधर हमारा सुनने के लिए आया ना। हुकूमत ने कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए खुसूसी मराकज कायम किए हैं ताकि वो वहां पंचायत इलेक्शन के लिए बतौर वोटर अपना नाम रजिस्टर करवा सकें। यहां पहुंचकर माइग्रेंट्स एक बसहूलत एक फॉर्म भर सकते हैं जिससे जरूरी दस्तावेजात मुंसलिक करने होंगे और उस फॉर्म में तफसीलात देनी पड़ेंगी, जिसके बाद माइग्रेंट्स का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। महज माइग्रेंट्स की सहूलतकारी के लिए यह नज़म किया गया है। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए एक ख़ास सहूलियत दस्तियाब रखी गई है मुख्तलिफ माइग्रेंट कैंप्स में, जहाँ पे जो पंचायती चुनाव होने हैं उस सिलसिले में जो वोटर लिस्ट है उस में इंक्लूजन के लिए कुछ फॉर्म्स निकाले गए हैं और उसमें काफ़ी जो माइग्रेंट्स है शमूलियत कर रहे हैं। जहाँ तक हम पंचायत चुनाव की बात करते हैं तो वहाँ पे इन फॉर्मों को उन माइग्रेंट्स को दिया गया है, जहाँ पे ये माइग्रेंट फॉर्म्स को भरेंगे और पूरी डिटेल के साथ जो भी बाकी इंक्लूजन करने हैं जो मेंबर्स हैं इसके ज़रिए सरकार तक ये पहुँच जाएगा और उसके बाद ULB और पंचायत के लिए जो चुनाव होने हैं उसमें वोटर IDs उनको इजरा की जाएंगी। और जहाँ तक एपिक नंबर का सवाल है वो बिल्कुल जो असेंबली और पार्लियामेंट्री चुनाव के लिए वोटर ID जारी किए गए हैं उसका एपिक नंबर सेम रहेगा। हमारे साथ कुछ ऐसे माइग्रेंट हैं जिनसे हम बात करेंगे। आपका शुभ नाम? अशोकदार। डर साहब, ये जो सरकार की तरफ से ये इक़दाम उठाए गए हैं या ये कदम जो फार्म इजरा किए गए हैं और माइग्रेंट को देने के लिए, कैसे लेते हैं इन सभी चीज़ों? ये अच्छी बात है और ये पहली बार हुआ है कि जो पिछले आज 1 हफ्ते से जो पंचायत का इलेक्शन आने वाला है और पिछले 1 हफ्ते से रिलीफ डिपार्टमेंट ने हर जगह पर, हर कैंप में, हर नॉन कैंप में उन्होंने अपना कैंप लगाए हैं और जितने भी मुलाजिम है रिलीफ डिपार्टमेंट में, जो हमारे माननीय रिलीफ एंड रेपुटेशन कमिश्नर के सिदा साहब ने बहुत अच्छा काम किया और हर जगह पर इस वक्त ये इंक्लूजन हो रही है और हमें भी ये भरना चाहिए क्योंकि जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें हम कश्मीरी पंडित अपना नुमाइंदा वहां पर खड़ा करेंगे। जब हम सारे भरेंगे, जब हम वोट डालेंगे और ये हकीकत है कि वहां पर कश्मीरी पंडित ही कामयाब हो जाएगा। और मैं भी सबों को गुजारिश करता हूं जितने भी कश्मीरी माइग्रेंट है वो सब ये फार्म भरे और ये अच्छी बात है। कश्मीरी माइग्रेंट पिछले 30 साल से दरबदर है, कोई नुमाइंदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके लिए वेलकम करते हैं हम सिद्धा साहब को। तो और हर एक इंसान को जो भी माइग्रेंट है इसका इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि अपना नुमाइंदा खड़ा करो, अपनी बात होकर गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। यानी ये कहना है इनका माइग्रेंट्स का कि जो भी सहूलियत दस्तियाब रखी गई हैं सरकार की तरफ से, जहाँ तक ये फॉर्म 2A की बात करेंगे, इंक्लूजन जो वोटर IDs में होगा वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है उन
सभी माइग्रेंट्स के लिए, क्योंकि ये अपना नुमाइंदा चुनेंगे जो इनकी आगे मदद करेंगे, इनके जो मुश्किलात है उनका अजला करने के लिए। कैमरामैन आशु के साथ मैं राजेंद्र टिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। और खराबल अंतराग से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल सलाह ने भूटान में हाल ही में मुनक़िदा साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन में टीम इंडिया की नुमाइंदगी करके एक नई तारीख रकम की है, जबकि उनकी अंडर 16 टीम में शमूलियत ने फुटबॉल की जानिब यहां के नौजवानों की दिलचस्पी को मजीद फरोग़ दिया है। अनंतनाग में कवल फुटबॉल क्लब की जानिब से अब्दुल सलाह को एजाज से नवाजा गया और इनके वतन वापस लौटने पर एक इस्तक़बालिया का भी एहतमाम हुआ। के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम